Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the two newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So the most important news of the day that has been reported, we'll discuss that. And additionally, I'll be also supplementing some of the important relevant information that is not there in the newspaper so that can help you in your prelims and mains examination. So let's get started. So today is 4th of December and the first topic is emergency use of authorization vaccine in India. The second most important topic is issues related to the procurement and PDS. So this is an editorial reported in the Hindu. The third is increase in the domestic flight capacity of the year after COVID-19. There's a surge in the domestic capacity. So this would ultimately help in the overall GDP contributions. And the fourth is government farmer talk over the farms law. So recently there's a eighth day, the agitation has been continued and government is trying to negotiate with the farmers, but something conclusive has not been done yet. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें so that you could practice some important questions. Now starting the first news, that is emergency use of authorization vaccine in India. The news has been reported in the Indian Express and this is pretty relevant for your general studies paper 3, science and technology and medical uses. The part is already mentioned there and some parts here and there may be again relevant for your prelims examination. So India is looking forward to use the emergency vaccine that was done on the similar case by the UK and US. तो अभी रिसेंटली जिस तरह से फाइजर को इमरजेंसी यूजेस के लिए परमिशंस दी गई है वहाँ पे उनके मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, इन इंडिया वी हैव ICMR, राइट. सो ये सारी जो रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो की जा रही है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी वैक्सीन यूजेस, तो इंडिया ने भी कहा है कि वी वुड बी सून ऑल्सो लॉन्चिंग दिस सो दैट कि इमरजेंसी टाइप में जब इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस वैक्सीन. सो विथ the Pfizer and BioNTech, Pfizer is a US firm and BioNTech is from Germany. They are using mRNA. ये एक पहली तरह की वैक्सीन्स होगी जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा ह्यूमंस में. बिफोर दैट ओनली ट्रायल हैज़ डन, नो फाइनल वैक्सीनेशन वाज बीइंग डन. तो mRNA टाइप की इसकी वैक्सीन है फाइजर की, दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम और ये रेडी है आफ्टर द ट्रायल. 80,000 वॉलेंटियर थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था फेज 3 के ट्रायल में एंड सम गुड रिजल्ट एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे इनकी जो एफिकेसी रेट थी वो 94.5% थी, राइट. सो इट इज स्ट्रॉन्ग, क्लोज टू 95% भी इन्होंने बताया है, बट जो कंफर्मेशन डेटा है वो 94.5% की है. तो इंडिया की अपनी जो वैक्सीन हैं दैट वुड बी अवेलेबल वेरी इमीडिएटली फॉर पब्लिक यूज़ आफ्टर द फेज 3 ट्रायल. तो फेज 3 ट्रायल जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ऑलरेडी 3 बड़ी इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, कोवैक्सीन है और कोविडशील्ड है. ये 3 वैक्सीन हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ और बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन है एस्ट्राजेनिका का. तो दीज आर द थिंग्स दे आर वर्किंग अपॉन. और अगर बात करें इंडिया में जो ड्रग कंट्रोलर रेगुलेटर है दैट वुड बी कन्विंस्ड आफ्टर द पोटेंशियल वैक्सीन एफिकेसी. तो अभी इमरजेंसी केसेस में इंडिया ने भी कहा है कि वी वुड बी ऑल्सो looking forward to get an approval so that the vaccine can be used for the emergency purposes like the same has been done in the UK and US cases, right. Now coming to the emergency use of authorization and procedures in India, तो जो emergency authorization होती है, जो EU होती है, the procedure in India that is similar to that of the European Union, right. जिस तरह से European Union में की गई है, United Kingdom में and United States. तो ये 3 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे EUA है जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन उनकी परमिशन दी जाती है एंड दिस इज अ हार्मनी अमॉन्ग द ड्रग रेगुलेटर दैट इज ग्लोबली प्रैक्टिस्ड. तो जब भी पेंडेमिक होती है, इस तरह के जब भी सिचुएशन आते हैं तो इमरजेंसी यूजेस में इसकी कंडीशंस ऐसे क्लॉजेज है कि कंट्री परमिट कर सकती है. और जो ड्रग और वैक्सीन अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे US के लिए US FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट हैज़ अप्रूव्ड कि सम ऑफ द बीइंग स्टडी जो लिमिटेड लोकल पॉपुलेशन में जो स्टडी की गई है और उसकी जो एफिकेसी रेट अगर 70% से भी ऊपर आती है तो दैट वैक्सीन कैन बी यूज्ड. क्योंकि वहाँ के जो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर है डॉक्टर फॉची, उनके मुताबिक अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 70% से भी ऊपर होती है तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द
ह्यूमन दैट कैन बी एडमिनिस्टर। बट यहाँ पे जो एफिकेसी रेट है प्रेजेंट में 94.5% है। एस्ट्राजेनिका बेसिकली जो फाइजर है उनकी, जो कि 2 कंपनी ने मिलकर बनाया है, फाइजर एंड बायोनटेक, तो इनकी एफिकेसी रेट काफ़ी अच्छी है। सो दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड। एंड इफ द सिचुएशन डिमांड, जो रेगुलेटर है दैट हैज़ अ पावर टू वेव ऑफ द कमेंडेड मोर टेस्ट एंड डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर इन द इंडियन डेटा। तो ये अपने तरीके से जो अपनी पॉपुलेशन है वहाँ पे ही टेस्ट करके आगे वहाँ के सिटीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में जो फेज 3 के ट्रायल है वो पॉजिटिव हो, उनकी वेरिएशन आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर जिस कंट्री में उनको स्पेसिफिकली, अगर मान लो यूएस है, यूएस के अपने लोगों को देना है, तो अगर यूएस में एफिकेसी रेट सही है तो दे कैन ओनली गिव देयर यूएस सिटीजन। आगे बाहर के कंट्रीज में जब तक वहाँ के पॉपुलेशन की, वहाँ की इम्यूनिटी पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, देन दे कैन नॉट एडमिनिस्टर। बट कंट्री वाइज भी जिस तरह से रेशियो आएंगे अकॉर्डिंगली दे कैन एडमिनिस्टर इट, राइट। तो इंडिया में भी फाइजर को देखना होगा, क्योंकि फाइजर की अगर एक जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो मैं आपको बता दूं, दैट इज रिलेटेड टू द कोल्ड चेन, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस माइनस की टेम्परेचर मेंटेन करनी होती है। तो वहाँ पे यूएस में तो इस तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं जो कि मेंटेन कर ले, इंडिया में अभी भी नहीं है। तो इसमें बताया गया था कि फाइजर कुछ इस चीज़ पे काम करे ताकि इसके टेम्परेचर को भी और मेंटेन किया जा सके, कुछ कम किया जा सके। बट फाइजर इज़ मोर कंसर्न ऑन देयर ओन कंट्री। अभी वो यूएस पे ही टारगेट कर रहे हैं। इंडिया के लिए हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोवैक्सीन है, ये सारी ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है। भारत बायोटेक जो कंपनी है दे आर वर्किंग, बट लेट्स सी वेदर फाइजर वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया टू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह के जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। कोल्ड चेन फैसिलिटी से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो कोल्ड चेन की फैसिलिटी होती है, जहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर के जो एक्चुअल वेयर हाउस है जहाँ पे ये रखी जाएगी, वहाँ तक में -70 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करना मैंडेटरी होगा। सो इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ बॉटलनेक्स, तो इस चीज़ को अभी के टाइम बिंग कंसर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, राइट। नाउ कमिंग टू द फेज 3 ट्रायल इन इंडिया, इंडिया की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कोविशील्ड है, इज बेस्ड ऑन द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उनके साथ, और ये CHADOX19 पे नाम काम करिए। तो ये जो है अब तक में दे हैव बीन टेस्टेड इन द 16,000 वॉलंटियर्स। उसके बाद वी हैव कोवैक्सीन, जहाँ पे टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बिगन, फेज 3 की ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 28,900 वॉलंटियर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा वी हैव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज अप्रोचिंग द ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड EU विद इन 2 वीक्स। तो ये सिट्सको को ऑथोराइज, उनको परमिशन के लिए बोलेंगे, क्योंकि सिट्सको इज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गिविंग द परमिशन विद कोऑर्डिनेशन विद द ICMR, राइट। तो ICMR के साथ कंसल्टेशन में जो फाइनल अथॉरिटी है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होती है बिफोर एनीथिंग कम इनटू द प्लेस। उसके साइड इफेक्ट्स देखने होते हैं, रिवर्स इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, सो दैट द वैक्सीन कैन बी अप्रूव्ड इन द कंट्री, राइट। जो क्या इम्यूनोजेंसिटी है वहाँ की पॉपुलेशन की, अकॉर्डिंगली देन द अप्रूवल इज बीइंग गिवन, राइट। सो सेवरल ड्रग्स की अगर बात करें, जो शुरुआत में रेमडेसिविर थी या फैबीपिवर थी, दीज आर सम ऑफ द EU जहाँ पे रिमूव कर दिया गया इनके रिकमेंडेशंस को। जो हमारी ICMR है उन्होंने इसको बेसिकली आगे अप्रूवल के लिए मना किया था। शुरुआत में रेमडेसिविर, फैबीपिवर भी दी जा रही थी, बट आफ्टर दैट इसके जो बेसिकली ये कोविड-19 के एक्चुअल में मेडिसिन नहीं थे, इनको मलेरिया के और ऐसे किसी जो डोजेस थे उस पे हाई करके दिया जा रहा था, बट उसके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। सो दैट इज़ वाई ICMR हैज सेड कि दे शुड बी रूल्ड आउट। नाउ इंडिया ऑफिशियली सेट कि जो ब्रॉड ब्लूप्रिंट होगी वैक्सीनेट करने की अमंग 30 करोड़ हाई रिस्क इंडिविजुअल, उसको पहले साल के पहले मतलब 2021 के हाफ ईयर तक ये लोगों को कवर किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली फिर जो 2 और वैक्सीन बन रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, for with that only the entire population of the country would be vaccinated, and this would roughly take an year. I personally feel कि इसमें कम से कम 1 साल तो लग जाएंगे पूरे लोगों को वैक्सीनेट करते करते, if the vaccine is arriving in February। अगर उसमें भी चीज़ें लेट होती है तो accordingly time would increase। Now coming to the India secure maximum COVID-19 vaccination dose, अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो दे हैव मेड 1600 मिलियन कन्फर्म डोजेस परचेस कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर के एडवांस में परचेज। अगर इंडिया की बात करें तो 1600 मिलियन हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट दिया हुआ है। EU ने 1585,
USA 100 ऑलमोस्ट $1,000 million के आसपास, कोवैक्स 700 मिलियन. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज. आप देख सकते हो सबसे कम में भी यहाँ पे ब्राज़ील है, दैट इज हैविंग 160 मिलियन. तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द कंट्री इज ट्राइंग टू एडवांस द वैक्सीन्स, उसके जो स्टोरेज हैं या फिर उसके जो प्रोक्योरमेंट है उस पर वो चाह रही है ताकि उनके सारे पॉपुलेशन को जल्द से जल्द कवर किया जा सके. राइट, सो दिस इज द डेटा, दिस इज द ऑथेंटिक डेटा विच यू कैन रिलाई अपॉन, और आप ये फिगर देख सकते हैं. Now coming to the issues related to the procurement and PDS, this is an editorial because the farm agitation has been continued for 9 days. और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि जो फार्म रिलेटेड जो भी डिबेट न्यूज़पेपर में आ रही है, दिस विल कंटिन्यू. राइट, तो आप ऐसा ना हो कि आपने एक बार न्यूज़ पढ़ लिया तो आप दूसरे न्यूज़ को ना देखें. इट इज़ वेरी एसेंशियल कि यू शुड कंटिन्यू रीड दैट न्यूज़पेपर, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे डायमेंशंस होंगे जो कि निकल के आएंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस परस्पेक्टिव. मेंस के लिए इस तरह के परस्पेक्टिव आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 and equally relevant for the prelims examination. Now the farm protests have erupted once again in the North India, as you know, and the farmer union wanted nothing in short of complete withdrawal of the 3 farm law that was being enacted. जो 3 farm laws लाई गई है उसको फार्मर्स का कहना है कि इसको आप पूरी तरह से हटाइए, इसको पूरी तरह से एब्रोगेट करिए, एंड बिकॉज ये जो है ये स्मॉल फार्मर को और जो मार्जिनल फार्मर है उनको पूरी तरह से आहत पहुंचाएगा, पूरी तरह से रिन्यू करेगा. Now there are main worries about the possible withdrawal of the MSP. जो MSP के लेकर के जो issues हैं, farmer are of the opinion कि in long run they are also making some observation कि in long run MSP might be dismantled और इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, and dismantling would be again have impact on the पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द ग्रीन. जो PDS है या फिर उसमें किस तरह से इम्पैक्ट होगी. बट इस एडिटोरियल में ये बात क्लियरली कही गई है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी होगी. सो बट उसकी जो चीज़ों को चैनलाइज करना वो बहुत अहम है. नाउ दे कैन हैव ऑल्सो connected the living farmers so that mercy of the open market, and the stage has been set for the large private player over the agriculture activities. Now some other dimension that is covered in the एडिटोरियल, तो कुछ गवर्नमेंट क्लेम्स के बारे में मैं आपको बता दूं. सो द गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड कि जो एक्ट होगी दैट विल ओनली इंक्रीज द ऑप्शंस ऑफ द फार्मर इन द आउटपुट मार्केट. ऐसा कहना है गवर्नमेंट का. ये जो 3 फार्म्स बिल आए हैं उनके लिए ये फार्म गवर्नमेंट की सपोर्ट आर्ग्यूमेंट ये है. और जो MSP के जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है दैट विल कंटिन्यू. दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड, बट द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अ रिटन एश्योरेंस. गवर्नमेंट से रिटन एश्योरेंस मांगा जा रहा है बट दे आर नॉट गिविंग द रिटन एश्योरेंस. राइट, एंड टू सपोर्ट द क्लेम गवर्नमेंट पॉइंट आउट्स की जो फैक्ट ये है कि एब्सोल्युटली देयर इज नो मेंशन ऑफ ईदर MSP और प्रोक्योरमेंट इन द एक्ट्स. बट व्हाट फार्मर इज वांटिंग कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं, अगर आपकी पर्सपेक्टिव इस तरह की है, देन व्हाई डोंट यू राइट, व्हाई डोंट यू गिव इट अ लीगल बैकिंग. राइट, सो अपने तरफ से फार्मर भी बिल्कुल सही है, बिकॉज वन द थिंग्स हैज़ बिन पुटेड इनटू द लॉ इट बिकम द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉलो इट. नाउ आई विल टेल यू कि हाउ थिंग्स वर्क. अगर आप प्रोक्योरमेंट की अगर बात करेंगे तो सपोज ये फार्मर है, फार्मर नो अगेन इफ दे हैव गिवन द MSP, प्रोक्योरमेंट होती है MSP प्राइस पे. सो दिस फर्दर रीचेस टू द सेंटर. सेंटर फिर क्या करती है, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करती है, और एलोकेशन जो होती है वो सेंट्रल प्राइस पे इशू की जाती है. नाउ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डू, स्टेट गवर्नमेंट गिव दिस टू द फेयर प्राइजेस शॉप जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे जाती है. उसके बाद सेल ऑफ ग्रेन होती है एट द सेंट्रल इशू प्राइस, एंड अल्टीमेटली द बेनिफिशियरी इज गेटिंग द बेनिफिट. तो ये जो ग्राफ है, इफ़ यू आर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि ये ग्राफ्स आप जरूर बना रहे हैं. Now coming to the other point, that is dependency on the public procurement. So this is a turning point. यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा समझें. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दैट इज़ अ लाइफ लाइन इन द स्टेट, बिकॉज विदाउट विच इट कैन नॉट हैपन. वो चलेगा ही चलेगा, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, क्योंकि उनको MSP मिलती है और MSP पे वहाँ से उनके जो फार्म प्रोड्यूस है उनको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है. ठीक है, now this is a greater than the farmer. अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे, अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 88% ऑफ द पैडी प्रोडक्शन एंड 70% ऑफ द वीट प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा. तो ये 2 अकेले ऐसे स्टेट हैं कि जो पूरे पैडी में और वीट में डोमिनेट करते हैं. राइट,
और जो फूड ग्रेन, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ जो कि फूड बुलेटिन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है वहाँ से ली गई है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट की अगर बात करें तो जो मेजर पैडी स्टेट्स हैं उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम पंजाब and Haryana that include Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and Uttar Pradesh. Now only 44% of the rice production is from the public agencies. Now बात करें in case of wheat तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कम है क्योंकि जो मेजर स्टेट है wheat में, wheat के भी जो मेजर प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, सो दिस इंक्लूड मध्य प्रदेश जहाँ की सरबती wheat इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस wheat क्वालिटी ब्रीड, और उत्तर प्रदेश में भी ये क्वार्टर अगर आप देखोगे तो दिस इज क्लोजली 23%, राइट। यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होती है दैट इज क्लोज टू 23%। नाउ दिस क्लियरली शोज कि जो फार्मर है दे आर हेवली, जो गवर्नमेंट भी है दे आर हेवली डिपेंडेंट अपॉन द फार्मर इन द पंजाब एंड हरियाणा फॉर द एमएसपी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। सो दीज टू स्टेट टॉकिंग अबाउट द पंजाब एंड हरियाणा दे हैव द डोमिनेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी एंड इन द वीट। सो इट इज़ एसेंशियल कि जो फार्मर की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान दिया जाए एंड एट द सेम टाइम दे शुड कंसिडर कि उनकी जो ज़रूरतें हैं एमएसपी को लेकर के, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के, दे शुड बी मेकिंग क्रिस्टल क्लियर ऑन द लेजिस्लेशन, गिविंग इट अ लीगल बैकिंग, राइट। तो ये डिपेंडेंसी होगी सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। Now coming to the government obligation, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अ क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो गवर्नमेंट को जो प्रोक्योर करना वो मस्ट है, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोक्योर। क्यों प्रोक्योर करना मस्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है और जो पीडीएस है उनको ये सुनिश्चित करना है, दे हैव टू इंश्योर कि दे आर प्रोवाइडिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड द पीडीएस। फॉर पीडीएस एवरीथिंग हैज़ टू बी डन, दे हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर। तो फार्मर कहाँ से आएंगे? फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, राइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस टू। Now, support under the NFSA have a legal backing and the legal right entitlement. ऑलरेडी जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको एक लीगल इंटाइटलमेंट है, तो बिना प्रोक्योर किए हुए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जब कॉर्पोरेट प्लेयर्स आएंगे तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट प्लेयर से कम रेट में खरीद सकती है, बट जो कॉर्पोरेट होंगे वो ज़्यादा रेट में खरीद सकते हैं फार्मर से, राइट। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं फार्मर को लेकर के कि हमें जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कम हो सकती है, सो दिस हैज़ अनदर कंसर्न एंड देयर आर नियरली 80 करोड़ ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी बेनिफिशरीज एंड एडिशनल 8 करोड़ माइग्रेंट्स हु नीड सपोर्ट अंडर द पीडीएस। तो पीडीएस इज समथिंग विच इज़ इनहेविटेबल, इसको किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है और गवर्नमेंट की अपनी ऑब्लिगेशंस है कि वो पीडीएस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे बिकॉज इट हैज़ अ लीगल बैकिंग अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, मेक श्योर आप एनालिटिकल एंगल से आंसर करें। नाउ कमिंग टू द पीडीएस की अगर बात करूं मैं, तो पीडीएस कैसे होता है? वो पीडीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, एफसीआई भी है, फेयर प्राइजेस शॉप्स है एंड बेनिफिशियरीज है। या तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं या जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था, यू कैन ड्रॉ ईदर ऑफ देम, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट दीज स्टेट्स मैटर, व्हाई दिस स्टेट्स मैटर, क्यों ये स्टेट्स मैटर करते हैं जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश हैं? Because if the state intend जो government है that intend to procure such huge quantities, then it needs to have two states, पंजाब और हरियाणा, कि ये जो states है they have been in the front supplying the food grain and procurement to the agency। और nearly अगर बात करें 35% of the rice and 62% of the wheat are procured in the last 3 years from these state। तो अब ये डेटा जो है ये गवर्नमेंट की डेटा है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी चीज़ें प्रोक्योर की हैं इन्हीं स्टेट से की है। एंड ऑल्सो nearly 50% of the total coarse grain has come from these two states only. These two states, I mean by Punjab and Haryana, right? So these are the two states. Now thus the government has the little option that they could continue the procurement from these states for the foreseeable in the future. और आने वाले समय में भी गवर्नमेंट को इन्हीं स्टेट पे डिपेंड होना होगा because they are the largest producers, right? So this is why the state like Punjab and Haryana matters a lot. Now what government must do, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए? सो इट इज़ क्लियर कि अभी के टाइम जो डिसमेंटलिंग है प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, दैट इज़ नीदर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर नॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज दोनों फार्मर को अपना काम है बेचने का और गवर्नमेंट को लीगल मैंडेटरी है, वो लीगली ऑब्लाइज्ड है कि वो परचेस करेगी, प्रोक्योर करेगी, क्योंकि उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरा करना है, उनको पीडीएस के क्लॉजेस को पूरा करना है, राइट। एंड देयरफॉर इट इज इम्पेरेटिव कि जो गवर्नमेंट है दैट रीचेस टू द फार्मर, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझे और एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे।
Now the government need to start this initiative immediately. That should have an legitimate concern of the farmers, or government adequately need to focuses upon the demand and the desire that farmer is requiring at this point of time. Now coming to the way forward, क्या किया जा सकता है पूरे परिवेश को देखते हुए, covering to the entire picture. So apart from addressing the core issues, the MSP procurement system and many more important things are needed in this act that should be there. The absence of regulatory mechanism का मतलब है to ensure a fair play by the private player, and the lack of transparency जो हो रही है ट्रांजिशन में, ये दोनों चीज़ों पे सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले. It should be immediately addressed. And severe trust deficit that is there between the farmer and the government, that should be addressed, because जो bill है that is again not very friendly to the farmer. If they want कि special session होना चाहिए, it should be there. मैं discuss करूँगा आपके साथ न्यूज़ में आगे कि किस तरह से इस special session की डिमांड की है farmers ने. Now coming to the other news, this is from the Indian Express. Increase in the domestic flight capacity of the airline. So जो domestic airline capacity है वो increase हुई है. So आप इस तरह के points अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे this can be again relevant. ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट्स आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में कंट्रीब्यूट करें. सम पॉइंट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग इन द ऐसे पेपर. अगर आप इकोनॉमी बूस्ट, जिस तरह से इकोनॉमी रिकवर कर रही है इंडिया में, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन कोई मेंस में भी लिखते हैं तो यू कैन कोड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. नो अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो डोमेस्टिक फ्लाइट कैपेसिटी है इंडिया की वो रेज कर गई है ऑलमोस्ट 80%. जो पहले हुआ करती थी प्री कोविड लेवल पे, उसकी 80% के लेवल को मैच कर चुकी है. इन नवंबर ऑलमोस्ट 2.52 लाख पैसेंजर्स हैव ट्रेवल्ड इन द डोमेस्टिक फ्लाइट, जहाँ पे ये डेटा अगर आप मई 25 की कंपेयर करो तो ओनली 30,000 पैसेंजर वे ट्रैवलिंग इंटायरली इंडिया, पैन इंडिया. तो सेंटर हैज़ रिसेंटली अलाउड जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो उनको ऑपरेशंस करने के लिए, ताकि वो ऑपरेशंस करें और अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं. Now this will help airline in adding more flight existing to the new sector, flight operation into the normalcy. तो जो प्री कोविड लेवल्स पे जो रेट थे, जो रेशियो थे या जो पैसेंजर्स की ट्रैफिक थी, उसको वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. Now there was some restriction in the operation during the COVID-19 pandemic. जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, जो लॉकडाउन लगाए गए थे, उसमें अगर आप बात करेंगे तो जो मई में दे वर ओनली ऑपरेटिंग विद द 33%, राइट. उसके बाद इन जून द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें. दे हैव ग्रेजुअली इंक्रीज टू 45%. उसके बाद सितंबर में जो है ये डेटा बढ़ के 60% तक हो गई. बट एज ऑफ नाउ अगर नवंबर की बात करें तो इन नवंबर दे हैव रीच टू द 70% ऑफ द टोटल जो उनकी कैपेसिटी थी उसकी. बट अभी 100% तक पहुंचने में इट विल टेक अनदर क्वार्टर, पॉसिबली बाय मार्च 2021 और अप्रैल 2021 दे वुड बी चेजिंग द प्री कोविड-19 जो रेशियो थे, जो डेटा थे या जो फिर उनकी स्ट्रेंथ थी वहां तक पहुंचने के लिए. नाउ एक्सपर्ट की ये ओपिनियन है कि जो कंटेनमेंट की जा रही थी कोविड-19 के इस पर, वो बहुत सारे से फैक्टर थे रिकवरी ऑफ फ्लाइट्स को लेकर के. तो रिकवरी इन द डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक हैज़ कंटेंजेंट फॉर द 5 फैक्टर, राइट. कंटेनमेंट इन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, जहाँ पे डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन अवेलेबिलिटी इज, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू अंडरटेक लेजर ट्रैवल. Now रिकवरी इन द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिस तरह से सेक्टर्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी जा रही है वहाँ पे भी दिस इज अगेन ऑफ द फैक्टर विच इन टर्न इम्पैक्ट द कंज्यूमर सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट्स हैं उसको. Now सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव वेरियसली मैंडेटेड द रिस्ट्रिक्शन एंड क्वारंटीन नॉर्म्स. जो क्वारंटीन के नॉर्म्स थे उसको भी स्ट्रॉन्ग किया गया, थोड़ा ईज डाउन किया गया सो दैट पैसेंजर्स कैन ट्रैवल. और रिकवरी इन द बिजनेस ट्रैवल हैव ऑल्सो बीन टेकन प्लेस. सो दिस इज द रीजन दैट एयरलाइन इज गेटिंग टू देयर strength, or possibly by March 2021 or April 2021 they would be fully recovering. Now coming to the last topic, that is government farmer talk over the farms law. तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी इनैक्ट एक कोशिश की है कि किस तरह से जो 8 डे लॉन्ग एजुटेशन है, दिस वुड बी 9th डे टुडे, तो इस तरह के जो एजुटेशन है उसको कम किया जाए, कोई नेगोशिएशन पे आया जाए. बट फार्मर वांट कि आप इसको एब्रोगेट करिए. ये जो 3 बिल आपने लाया है दैट शुड बी कम्प्लीटली रिपील्ड ऑफ, राइट. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, and this type of question is very very important for your personality test,
राइट। जब आप पर्सनालिटी टेस्ट देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, सो इस तरह के ओपिनियन बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे एंड दैट ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। तो मेक श्योर यू हैव अ व्यू पॉइंट ऑन एनी ऑफ द इश्यूज। दिस इज नॉट ओनली अ न्यूज, दिस इज अ इशू, राइट। तो इस तरह के इश्यूज पे अपने ओपिनियन बनाना सीखें आप जितनी जल्द हो सके। Now, recently, the fourth round of talks between the center and the farmer leaders ended to the conclusive talks on Thursday, but कुछ conclusiveness नहीं आ पाई। सेंटर ने ऑफर किया कि ठीक है, जो भी आप अमेंडमेंट चाहते हैं 8 अमेंडमेंट कर देंगे हम। Now, the reform of the law would be offer an assurance of the MSP and the farm produce would continue. But farmer का कहना है कि नहीं, we want this 3 law to be completely repealed by the special session of the parliament, right? नाउ नेक्स्ट मीटिंग जो है दैट इज शेड्यूल फॉर सैटरडे। कल के लिए फिर से मीटिंग शेड्यूल है और वहाँ पे जो फार्मर मोस्टली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दे आर कमिंग। दे हैव सील्ड द बॉर्डर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है, और इनके बॉर्डर को सील करके दे आर ऑन द एजिटेशन। नाउ देयर डिमांड इज टू स्क्रैप द 3 लॉज और एमएसपी की जो रिजीम है और जो नई गारंटीड एमएसपी है वो उसको लीगल बैकिंग के साथ सरकार वापस लेकर के आए। एंड दे ऑल्सो वांट कि गवर्नमेंट शुड स्टॉप द फाइन्स ऑन द फार्मर्स एंड बर्निंग द स्टबल। जो स्टबल बर्निंग को लेकर के भी बहुत सारे फाइन्स लगाए गए। दे हैव द अनदर पॉइंट, फार्मर के अपने पॉइंट्स हैं कि वाई स्टबल बर्निंग वॉज नेसेसरी, बिकॉज कोविड-19 के बाद फार्मर के पास लेबरर्स नहीं थे, सो दैट लेबरर्स लॉसेज एंड द कंपनसेशन वॉज नॉट देयर, सो दैट इज द रीजन दे हैव ऑल बीन कंटिन्यूइंग द स्टबल बर्निंग। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2020 में जो सब्सिडीज थी फार्मर्स को वो भी हटा लिया गया। सो दैट थिंग्स शुड बी कमिंग बैक और उसको जो वापस जो बिल लाने से पहले जो चीज़ थी दैट शुड बी कमिंग टू द प्लेस। नाउ इशू डिस्कस्ड इन द मीटिंग, क्या क्या ऐसे इश्यूज थे जिनको डिस्कस किया गया। सो दिस इंक्लूड द सेफगार्ड टू इंश्योर द लैंड एलियनेशन एंड पॉसिबल वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी काफ़ी इश्यूज हैं। स्ट्रेंथनिंग द स्टेट रन मंडी, जो APMCs हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए। allowing the grievances redressal to the civil court rather than just to the sub divisional magistrate। जो SDM के अंदर अभी jurisdiction डाली गई है उसको हटा करके civil court की jurisdiction में डाला जाए। ensuring registration of private tender beyond the requirement of the PAN card। issues related to stubble burning, power subsidies, and some farmers related to written statement about the MSP and giving it a legal backing that would have a legal guarantee to the farmer, ensuring their fair prices, and if the prices fall they would have at the security of the prices कि हाँ इतने कम से कम उनके दामों पे वो अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल कर पाएंगे। Now coming to the answers of yesterday questions. So the first question, for the first question the correct answer is C, that statement 1 and 2 is correct, right? So article 26 provide for the freedom of managing religious affair, और 27 जो है that maintains no citizen can be compelled by the state to pay any taxes for the promotion and maintenance of religious and institutions। तो आप ये पढ़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी की जो बुक है M लक्ष्मीकांत की, वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Now coming to the second question, here the correct option is B, that the exogenic and endogenic process constantly shape the earth। And statement 2 is incorrect, that the gravitational force is not same at different latitude, it is greater near the pole and lesser in the equator, right? So class 11th NCERT geography। Coming to the today's MCQs question of the day, the first question is from the modern history. With reference to Atimsabha, consider the following statement: it campaigned against the idolatry, caste prejudice, meaningless ritual and social end. It was set up in Wardha in Maharashtra. So what do you have to do? You have to just write A, B, C or D, whatever you feel is the correct answer, in the comment section down below, right? Now coming to the second question of the day, with reference to GSP, consider the following statement: it is a preferential trade traffic system under which developed nation extend their duty to certain goods and their markets, and it help the new export to penetrate the market and increase the market share। So these are the two independent statement with regards to the GSP। अगर आपके पास कोई additional information है that also you can share with us, or either what you can do, you have to just write the option, correct option A, B, C, D in the comment section down below। So participate, write more and more answers so that we could come know how many of you are participating in the question answer series। And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly+ Academy for Civil Service on YouTube। And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. This would be a support that we would require from you, right? If you have any other analysis, if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much।